Hello viewers, welcome to this channel. Today we are going to discuss about the electrical circuit and network subject. Okay, in the previous video we have discussed about the syllabus of this subject, but today we are going to start unit 1 of that syllabus. Okay, in unit 1 you will study about the basic concept of electrical quantities and parameters, and today from this unit we will discuss about the resistance. Okay, we will discuss about the resistance, the definition of resistance, the behavior of resistance, the unit of resistance. These all are going to discuss in this video. Okay, so without wasting any time, let's get started. तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन ये है कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच resistance is a property of a substance, okay, due to which this substance opposes the flow of electric current. Okay, that means it is a property. Resistance is a property resistance is a property due to which any substance oppose the flow of electric current. Okay, resistance is a property due to which any substance oppose the flow of electric current. Okay, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस से और कोई भी मटेरियल से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक करंट को वो सब्सटेंस जिस प्रॉपर्टी से अपोज करता है, दैट मींस रोकता है और रोकने की कोशिश करता है, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे. ओके, रेजिस्टेंस का सिंबल है लाइक दिस एंड रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. ओके, सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस को इस साइन से और इस तरह से डिनोट करेंगे. ठीक है, इसका जो यूनिट है वो है ओहम और उसका सिंबल है कुछ इस तरह से. ठीक है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम और ओहम का सिंबल है ये. ओके, नाउ मान लो कि एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हम लोग एक डीसी सोर्स अप्लाई किए, उसका वैल्यू है कैपिटल V. ये डीसी सोर्स के वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा, दैट इज कैपिटल I, एंड द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस इज कैपिटल R. देन वी कैन राइट capital I equals to capital V by capital R. That means the current flow through that resistance is nothing but the ratio, or we can divide the voltage across resistance by the resistance value, then only we will get the current flow through this resistor. Okay. Similarly, if we apply a AC source across that resistance, which value is Vm sin omega t, where Vm is the maximum value of this sine wave and omega is the angular velocity. Omega means 2 pi f. Clear? So due to this voltage source, a current small I is flowing through this resistance, and the value of this resistance is R, capital R. So we can write I is equals to small v by capital R. If you put the value of small v, then Vm sin omega t divided by capital R. If we simplify this, then we can write like this. Now this Vm by R
we can write this is the maximum value of the current. So we can denote as Im, capital Im sin omega t, right? So this is the value of the current through the resistance when we apply a AC source across that resistance. Okay, and this is the value of the current through this resistor when we apply a DC source across that resistance. Okay, so this is for DC and this is for AC. Okay, so ये हो गया डेफिनेशन और ये हो गया एक बिहेवियर DC और AC में। अब हम लोग देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या है और ये किस चीज पर, किस पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ द प्रॉपर्टी। ओके, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, राइट? रेजिस्टेंस मतलब एक वायर सर्कुलर होता है, तो ये एक छोटा सा टुकड़ा एक वायर का है। ओके, मान लो इसका जो लेंथ है ये है स्मॉल l, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है कैपिटल A. सो वी कैन राइट and the resistance value is capital R of this small wire. Okay, so we can write small r is directly proportional to, sorry, capital R is directly proportional to small l. That means resistance of that wire is directly proportional to the length of that resistor. Okay, that means if length is increased, then resistance will also increase, and vice versa. If length is decreased, then resistance will also decrease. This one is number 1. Number 2 is R averages 1 by A. That means A means cross sectional area, right? So R, that means resistance, is inversely proportional to the cross sectional area of a conductor. Okay, inversely proportional means अगर ये cross sectional area increase कर जाता है तो ये जो resistance है ये decrease कर जाएगा, और अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर जाता है तो ये रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज कर जाएगा। ये कैसे होता है? मान लो ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर का ऐसे एक वायर है, राइट? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो इससे ज्यादा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर इज ग्रेटर देन दिस। ओके, सो द रेजिस्टेंस, मान लो ये A1 है और ये A2 है, right? So A2 is greater than A1 and इसका जो रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 है, so obviously R2 is less than R1. समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? यहां पे देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया है और रेजिस्टेंस घट गया है, ठीक है? लेंथ के टाइम पे भी ऐसा होगा। मान लो ये L1 है और इसका जो लेंथ है ये L2 है, right? So L1 is greater than L2. Okay, so we can write R1 is greater than R2. Clear? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स्ड रहता तो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को फिक्स रख के अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया को फिक्स्ड रख के अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। मतलब ये दो जो कंडीशन है ये एक साथ मत देखो, ठीक है? एक अलग अलग से कंडीशन को कंसीडर करो तो ये समझ में आएगा। ओके, so resistance is directly proportional to the length and resistance is inversely proportional to the cross sectional area. That's why the resistance of a thin wire is higher than a resistance of a thick wire. That means मोटा जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होता है थिन वायर से। ओके, now from these two condition, if we club these two condition, then we can write R averages L by A. अगर ये साइन को हम लोग हटाना चाहते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है रो।
ये कांस्टेंट क्या है, रो, राइट। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ओके, सो इस इक्वेशन में R है रेजिस्टेंस, रो है रेजिस्टिविटी, राइट, L है लेंथ, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, ये जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट क्या है, ओम। हम लोग पहले भी पढ़े हैं। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। ओके, लेंथ का यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, राइट। ये हम लोग जानते हैं। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर, ये हम लोग ने नया जाना, राइट। सो ये है कुछ प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस का। That means resistance is depend upon the length and the cross sectional area. Okay, एक चीज को फिक्स रख के अगर दूसरा चीज को हम लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस, इस दो जो कंडीशन है इसके हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी करेगा। ओके, और रेजिस्टेंस एक और चीज पे भी डिपेंड होता है, वो है टेम्परेचर। ओके, तो आइए देखते हैं कि टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट। इसको समझने के लिए पहले हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके, इस इक्वेशन में RT है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा इज टेम्परेचर, कोएफिशिएंट। ओके, नाउ फॉर प्योर मेटल alpha is positive. Alpha is positive. That means positive temperature coefficient. Positive temperature coefficient का मतलब है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, और एलॉय में alpha is also positive. That means positive temperature coefficient. That means अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। पर यहाँ पे एक बात है, कुछ एलॉय है जो हाई रेजिस्टेंस एलॉय है, दैट मीन जैसे कि यूरेका। इसमें 60% कॉपर है और 40% निकल है। इस टाइप का कुछ एलॉय है जिसका रेजिस्टेंस हायर टेम्परेचर में नेग्लिजिबल है। चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इन हायर टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। ओके, अदरवाइज ऑल द एलॉय हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, नाउ फॉर insulator alpha is negative. That means negative temperature coefficient. Negative temperature coefficient का मतलब है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, एंड टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा।
तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, राइट। अब हम लोग जानेंगे कि ओहम जो है रेजिस्टेंस का यूनिट, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग जो इक्वेशन हमने ड्रॉ किया था उससे इजीली हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। हम लोग डीसी सर्किट में क्या लिखा था कि I equals to V by R, where I is the current flow through that resistor and V is the voltage across that resistor and R is the resistance value। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R equals to V by I, R equals to V by I। ओके, नाउ यहां से हम लोग रेजिस्टेंस का, जो R है इसका यूनिट क्या है, ये रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट है ओहम। तो ओहम का डेफिनेशन देखो, अगर 1 वोल्ट एक वोल्टेज सोर्स एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग अप्लाई करते हैं और उस रेजिस्टेंस के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओहम, राइट। नाउ इफ we apply 1 volt across a resistor and 1 ampere flow through that resistor, then we can say that it has 1 ohm resistance। From that equation you can easily draw this definition, right। अगर हम लोग 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस और 1 एम्पियर फ्लो होता है, तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 1 ohm। So that is the definition of ohm, right। Now और एक चीज देख लेते हैं। हम लोग ड्रॉ किया था कि रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ ऐसे है, राइट। यह है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अगर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस को सर्किट में ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, राइट। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ये रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, हम लोग एक रेंज के अक्रॉस वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, यह है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, नाउ हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम से जैसे डिनोट कर सकते हैं, और भी कुछ टर्म है जैसे कि किलो ओम, मतलब 10 to the power 3 ohm, 1 kilo ohm equals to 10 to the power 3 ohm। 1 mega ohm equals to 10 to the power 6 ohm। 1 micro ohm equals to 10 to the power minus 6 ohm। ओके, सो ये 3 चीज अक्सर यूज होता है प्रॉब्लम में या सर्किट में या कहीं पे भी, ये किलो ओम, मेगा ओम और माइक्रो ओम यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी दैट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए रेजिस्टेंस। ओके, तो इस तरफ लिख लेते हैं सीरीज, इस तरफ लिख लेते हैं पैरेलल। सीरीज और पैरेलल। ओके, तो सीरीज कनेक्शन मतलब मान लो 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। ओके, 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। अगर इस 2 रेजिस्टेंस को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, मतलब कि देखो R1 का जो एंड पॉइंट है वो R2 के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, और इसके अक्रॉस हम लोग कोई भी सोर्स अप्लाई कर सकते हैं, एसी डीसी कोई भी सोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट सीरीज कनेक्शन विल बी R1 प्लस R2। ओके, यहां पे 2 रेजिस्टेंस है, मान लो 10 रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा इसमें
Rn है तो क्या होगा यहाँ पे R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn होगा। ओके, सो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है? दो रेजिस्टेंस है R1 R2, ये दो रेजिस्टेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हम एक पॉइंट से जोड़ देते हैं और एंडिंग पॉइंट को एक पॉइंट से जोड़ देते हैं तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड द पैरेलल कनेक्शन। ओके, सो पैरेलल कनेक्शन में जो R इक्विवेलेंट है, दैट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 by R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। ओके, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2, ऊपर में क्या होगा? R1 प्लस R2, राइट? तो अगर R इक्विवेलेंट का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, ये दो रेजिस्टेंस के टाइम में होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, ओके, तो क्या होगा? तो यहाँ पे सिमिलरली डॉट 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 प्लस 1 by Rn होगा। तब अगर तुम लोग सॉल्व करोगे ये तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वही होगा R इक्विवेलेंट का वैल्यू। ठीक है, तो ये है सीरीज कनेक्शन, ये है सीरीज कनेक्शन और ये है पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज और पैरेलल में अंतर क्या है? देखो, सीरीज कनेक्शन में एक का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे का एंड पॉइंट से जुड़ा होता है और पैरेलल कनेक्शन में दो रेजिस्टेंस या जितना भी रेजिस्टेंस है सब रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट में जुड़ा होगा और एंडिंग पॉइंट और एक पॉइंट में जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये है कुछ पैरेलल कनेक्शन और ये है कुछ सीरीज कनेक्शन, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस के बारे में इतना ही। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द कैपेसिटेंस एंड नेक्स्ट इज द इंडक्टेंस। Okay, so I think you like this video. If you like this video, then like the video, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and share it with your friends. Okay, so मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।